क्लास 9th विल सी द फीचर्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हाउ दिस पर्टिकुलर मॉडर्न पीरियोडिक table shows different properties. As you know, there are 118 elements till now discovered. I have already discussed in my first video, and 118 elements needs to remember is a very difficult task. So this modern periodic table, basically, which is a long form of it's also known as a long form of the periodic table. So this contains about 118 elements, and remember them is a very tedious and a very difficult task. So this periodic table is highly organized and systematic and simple. So what was the case of this periodic table? It make your work very simpler, okay, and systematic. So remember these elements in a very systematic form by means of this modern periodic table, right? As we know that the elements were arranged in the increasing order, arranged in the increasing order of atomic number. This was the case. Now, as we know that if we talk about the increasing order of the atomic number, it's this particular periodic table was arranged in that manner that it shows about certain things, like this atomic number is very useful टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना. अगर हमें एटॉमिक नंबर पता होता है तो वी कैन ईजिली कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. यू आर सीइंग दैट हाउ मच बेनिफिशियल इज़ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. 118 एलिमेंट्स, ईजी वे होता है सिंपल और सिस्टमैटिक वे से एलिमेंट्स को अरेंज करना. एलिमेंट्स वर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर. वंस यू नो द एटॉमिक नंबर you can easily calculate the electronic configuration for the elements, right? You know that electronic configuration means that how many electrons will be filled in K shell. Then you know that K L M N was the pattern. We were putting the electrons in it. In K we put 2 electrons, L में भी 8 is there, है ना, M में 18 है, ठीक है. आपको भी पता होगा ना 2n square formula we were using. So that is very important. N was 32. So this much elements you can place. So by knowing the atomic number of the element, you can know about the electronic configuration. अब easily आपको ऐसे for example हम एक simple सा idea लेके चलते हैं. For example, I give you argon. Argon's atomic number is 18. ठीक है, periodic table में argon है 0 group में. ठीक है, तो you calculate its electronic configuration 288 by means of this formula. ठीक है, 2,8,8. Now you know that 2 electrons will be filled in K shell, then 8 electrons will be put in L shell, then 8 electrons will be put in M shell. Now you know this thing in a very systematic manner, that how much you can put. So this way is very beneficial to the point. जैसे अगर हमें कोई particular element जो है के शेल में प्रेजेंट है ना, हम यहाँ से बहुत सी चीज़ें जान पाते थे अबाउट द पीरियड नंबर. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस टू यू एंड वंस अगेन आई एम रिपीटिंग इट. सो बाय लुकिंग इट यू कैन ईजिली कैलकुलेट द पीरियड नंबर. व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट? यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेल्स. तो 1 2 3. सो हाउ मैनी शेल्स आर देयर? 3 शेल्स. तो ये किस पीरियड में प्रेजेंट होगा? इट विल बी प्रेजेंट इन थर्ड पीरियड. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो इट. ठीक है, इवन विद दिस थिंग यू कैन ईजिली कैलकुलेट द ग्रुप ऑल्सो, है ना. आपको पता है कि आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मीन्स इट्स ऑक्टेट इज़ कम्प्लीट. इट्स वैलेंसी इज़ हाउ मच? 0. तो वैलेंसी कितनी निकल के आएगी इसमें? वैलेंसी आपकी निकल के आएगी 0. और आप कह सकते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसमें कितने हैं? 8 हैं आपके पास, है ना. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 हैं इसके. वैलेंसी कितनी आ रही है? 0. भाई कुछ ऐड नहीं करना, कोई निकालना नहीं है, तो इट इज़ गेटिंग 0 वैलेंसी. सो इट विल कम इन विच ग्रुप? इट विल कम इन 18 ग्रुप, जिसको हम क्या कहते हैं? 0 ग्रुप ऑल्सो. So this way you can calculate about the elements. ठीक है. Then the next part is ग्रुप्स के बारे में हमने जान लिया, पीरियड्स के बारे में हमने जान लिया. इट्स वेरी बेनिफिशियल दैट दीज थिंग्स. वी कैन टेक सम अदर एग्जाम्पल ऑल्सो. ये तो हमने एक आर्गन का लिया. सपोज करो आई टुक से calcium atomic number is 20. So you calculate the electronic configuration 2,8,8,2. Now you know I am not discussing in detail of it. So by looking it you can easily calculate its period number. कैसे? K L M N. शेल कितने? हाउ मैनी शेल्स आर देयर? 1 2 3 4. ऐसे याद ना रहे तो 1 2 3 4 ये भी लिखते हैं ना हम इन नंबर्स को.
So number of shells, how much you get it is 4. Number of shells are 4, right? And what about your this thing, period number? So whatever is your number of shells, so period number will be is equals to 4. Now we can easily calculate the group number also. देखो कितना benefit है हमें. Group number, यू सी द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ग्रुप नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी भी 2 है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज हाउ मच? 2. वैलेंसी कितनी हो गई? वैलेंसी इज ऑल्सो 2. तो ग्रुप नंबर कौन सा हो गया? 2. सेकेंड ए में आता है, लेकिन आप नंबर्स में न्यूमेरिक फॉर्म में लिखेंगे, देन यू राइट डाउन 2. सो दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. यू कैन राइट डाउन ग्रुप नंबर 2. So this way is very helpful to you to understand about it, about the groups, also about the group. Now we'll discuss one more thing about the groups and the periods. Now I am putting this elements, ठीक है, these elements are being placed over here, है ना. अब हम ग्रुप्स के बारे में देखेंगे. अभी हमें नहीं मालूम है इन विच ग्रुप दे आर कमिंग. ईजिली कैलकुलेट अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? ये चलो पहले एटॉमिक नंबर लिख लो, जगह कम है, but you can write down atomic number is 1, over here it's 3, over here is 11, over here is 19. Now you can put the electronic configuration. You can write down as this thing, electronic configuration. For this electronic configuration is 1, for this 2, 1, for this 2, 8, 1, for this 2, 8, 8, 1. Now you are getting certain similarities. What is the similarities? Just focus on this. Valence electron. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? यहाँ पर भी 1 है, इस केस में भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है. एवरी टाइम यू आर गेटिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1. देन वन मोर सिमिलैरिटी यू आर गेटिंग अबाउट द वैलेंसी. ठीक है, वैलेंसी, हाउ मच वैलेंसी यू आर गेटिंग ओवर हियर? जस्ट सी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1, वैलेंसी इज 1. इट्स 1, 1 and 1. So this way you can easily get the valency also. 1, 1, 1 and 1. And over here valence electron 1, 1, 1, 1. So I think this is clear to you that it's so important and it's so beneficial to have a modern periodic table. तो ग्रुप्स में आपने देखा कितनी बढ़िया बात है. अगेन एंड अगेन एक ग्रुप में अगर आप सारे एलिमेंट्स को रखेंगे, you will get the same valencies, you will get the same valence electrons, and by this, by knowing the valency, you can easily put the group number. तो इसका ग्रुप नंबर क्या हो गया? 1 हो गया, 1A, और what you can call as 1. ठीक है, न्यूमेरिक फॉर्म में. सो दिस इज़ द वे यू कैन ईजिली कैलकुलेट. तो देखा एक पीरियड में वन इन पीरियोडिक टेबल व्हेन यू आर पुटिंग योर एलिमेंट्स, यू कैन, इट्स सो बेनिफिशियल दैट इफ़ यू आर पुटिंग ऑल द एलिमेंट्स इन द वन ग्रुप, देन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट क्वालिटीज़ यू आर गेटिंग. सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सेम वैलेंसी. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू कैन गेट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट. लेट्स फोकस ऑन द वन मोर पार्ट ऑल्सो रिगार्डिंग द पीरियड्स. ठीक है, पीरियड्स में हम एक बार और रिपीट कर लेते हैं सो दैट वी कैन सी. आई एम अगेन राइटिंग वन एग्जाम्पल टू यू. So I have written all the examples, right? I have written all the examples and I am not writing the period number or in which period it is coming. Now what is, let's focus on small things. Atomic number 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Let's focus on the electronic EC. I am writing, you don't write down EC but you write down a full thing. So electronic configuration, now you know 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. I think this much is be known to you. 2, 7. So this way you can easily calculate the electronic configuration. अब थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का. या हाँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट? जस्ट सी 1, 2, 3, 4, 5 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. वन मोर थिंग यू कैन डिसाइड अबाउट द वैलेंसीज, एंड बिफोर दैट यू कैन सी अबाउट द शेल्स. शेल्स पहले देख लो, वो ज़्यादा बेनिफिट्स हैं. नंबर ऑफ शेल्स. सो ओवर या 1, 2, हाउ मैनी शेल्स आर देयर? 2. 1, 2, 1, 2 कर लोगे ना, KL, तो कितना हुआ? 1, 2. एवरी टाइम यू आर गेटिंग 2 shells. So what you are getting in a group that the number of shells are same. वहाँ पे क्या था?
numbers of valence electrons were same, number of valencies were same, electronic configurations were same. Over here you are not getting the same electronic configurations. In period the electronic configurations is different, because of it the valence electrons is different, because and number of shells are same, क्योंकि 2 to 2 आपको दिख रहा है. तो ये एक बेनिफिट है कि एक रेगुलर इंटरवल ऑफ पीरियड ऑफ टाइम में ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो आपकी रिपीट होती हैं. तो देखो नंबर ऑफ शेल्स आप लिख सकते हो, नंबर ऑफ शेल्स लिख लेना, इट्स सेम इन द केस ऑफ पीरियड. सो आई थिंक दिस मच इज़ क्लियर टू यू. नाउ वी कैन फोकस ऑन द वैलेंसी पार्ट ऑल्सो. अगर यहीं पे एक कॉलम बना लें हम वैलेंसी का तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा. देखो यहाँ पे वैलेंसी 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी या 4 होगी, ठीक है. ये ऐड ऑन करेगा. 8 बनाने के लिए हाउ मच रिक्वायर्ड, 3 मोर ना, 5 + 3 इज़ 8. यहाँ पे जोड़ लीजिए 6 आपने वैलेंस, इसमें कितना जोड़ना है 2. ओवर हियर इट इज़ 1. सो दिस इज़ द वैलेंस. यू आर गेटिंग वैलेंसी इज ऑल्सो चेंजिंग, योर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर चेंजिंग, राइट. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ऑल्सो चेंजिंग, नंबर ऑफ शेल्स आर सेम. तो ये बेनिफिट है. अब यहाँ से कुछ चीज़ें और रिगार्डिंग द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. लेट फोकस ऑन सम एग्जाम्पल्स. मैंने रिपीट करा हुआ है लेकिन मैं एक बार वंस अगेन आई एम टेलिंग यू. सपोज आई गिव यू से कैल्शियम. You know the electronic configuration 2, 8, 8, 2. देखो मेटल्स हैं तो मेटल्स के, अगर मेटल्स में ये याद रखना, अगर मेटल्स हैं तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. अब जैसे ही तुमने देखा कि 2 है, मैच कर रहा है, यानी ये क्या कि एग्जाम्पल है मेटल का है. अगर नॉन मेटल है तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या होना चाहिए, 5, 6, 7. ये केस है. 4 जो है स्पेशल केस है, नॉन मेटल्स में भी आते हैं. आपके 4 की कुछ एग्जाम्पल्स और मेटल्स में भी आते हैं, उनको भी हम देख लेंगे, लेकिन अभी आप इनको याद रखिए. 6, 5, 6, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. व्हाट आर दीज आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. व्हाट इज दिस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है. तो ये क्या है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन से. तो ये क्या है आपका मेटल्स आ गया केस. नॉन मेटल्स क्या है, Cl है, सॉरी ये माइनस हटा दीजिए. Cl इज़ हाउ मच, 17. लेट्स फोकस ऑन इट. 2, 8, 7. आउटर मोस्ट ऑर्बिट किससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है. इसका मतलब ये क्या एग्जाम्पल है, नॉन मेटल का. अब कुछ भी उठा लीजिए. सपोज करो आई टुक दिस थिंग एल्यूमिनियम. 13 होता है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 3. किस में मैच हो रहा है, मेटल्स में कि नॉन मेटल्स में. इट इज़ कमिंग इन द केस ऑफ मेटल्स. तो व्हाट यू विल राइट डाउन, मेटल्स. सो यू आर सीइंग सो बेनिफिशियल इट इज़, so much important it is. So this is very good, you can get an idea. Now one more thing has been left. Let's focus few more examples. So for example oxygen, 8 is atomic number. So 2, 6. It's coming in which example, it is coming in non metal. तो आप क्या लिख दोगे इस पर, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कौन मैच कर रहा है, 6, 6. तो ये नॉन मेटल के एग्जाम्पल है. नाउ लेट्स फोकस ऑन द नोबल गैसेस. नोबल गैसेस में हीलियम स्पेशल केस है. हीलियम को हमेशा याद रखना, उसका जो लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये स्पेशल केस है. लेकिन अगर इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कंटेन हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, 8. लेट्स फोकस ऑन इट. फॉर एग्जाम्पल नियॉन 10 है, सो 2, 8. So 2, 8 is the example of it. तो आप इसको ये रख लेंगे नोबल गैसेस में. आई थिंक दिस मच इज़ क्लियर टू यू. सो दिस इज़ द एंटायर पार्ट विच हेल्प यू आउट टू टेल यू अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. इट्स वेरी बेनिफिशियल. इट टेल्स यू अबाउट डिफरेंट एलिमेंट्स. हमने आपको बताई थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जहाँ पे आपको मालूम था कि एल्किली मेटल्स कहाँ हैं, नॉन मेटल्स कहाँ हैं, वेयर इज़ योर transition elements, where is your inner transition elements, where is your lanthanides, where is your actinides. So all the positions were clear. पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन भी एक इम्पॉर्टेंट सिनेरियो है, क्योंकि वो ग्रुप 1 और ग्रुप 17 में आता है. वो भी थोड़ा मेनली फोकस ऑन दैट ऑल्सो. बट दिस चैप्टर विल कम, एक इंटायरली आएगा एक चैप्टर फुल, तो उसमें हम लोग विल सी डिटेल ऑफ इट. So I think we have covered up all the topics, and I have completed your half year's examination syllabus, and entire chapter is completed. So focus on the back questions, answers, middle of the because it is an ICSC both, so it's very important that you focus on the topics which are present in the middle of the chapter, because paper will not come from the back questions. It will come from your middle of the chapter, and your concept should be clear. So once your concept is clear, then you can easily complete your questions, and you should know the proper concept so that you can write down the answers in a systematic way. Whenever you are writing the definitions or any important scenarios, please focus on the
on the bookish language only. ठीक है, don't change it. So I think hopefully we have covered our syllabus and this chapter is also completed. Go through this video and learn other examples for these things, right?